Ji, good morning. Welcome to my channel once again. Okay, so today we are going to discuss about generational trauma. Generational trauma is something which we all should know what it is, and we should know how it transfers to our next generations and what effect does it leave on us and our children. So it's very important to understand what is generational trauma. In this video, I am going to take up generational trauma, its causes, its symptoms through different questions. So we'll be answering certain questions which generally are asked in my sessions, and through the reels I make sure that whatever information I have and whatever experiences I take from people, I share on this video so that somewhere somebody gets benefited out of it. And do subscribe and like my channel, and if you feel it's important for someone to know this information, do share it also. So our first question is, what is generational trauma? So generational trauma is made up of two words, that is generation and trauma. So now let's understand what is generational. Generational means basically कि हमारा आंखों का रंग, हमारी स्किन का रंग, हमारी हाइट, ठीक है, हमारा ब्लड ग्रुप, बेसिकली हमारे बहुत सारे बॉडी के जो ट्रेट्स हैं वो हमें अपने पेरेंट्स के थ्रू मिलते हैं, उन्हें उनके पेरेंट्स के थ्रू मिलते हैं. सो बेसिकली जनरेशनल मीन्स कि आपके एंसेस्टर्स में क्या रन हो रहा है, दैट कम्स टू यू. That is generation. And that is another term is trauma. Trauma is an experience, an event. कुछ ऐसा हुआ है आपके लाइफ में, या आपके पेरेंट्स या आपके एंसेस्ट्रल ने कुछ ऐसा लाइफ में पेन देखा है जो आपके साथ भी उसके इफेक्ट्स आ रहे हैं. अगर हमारा आंखों का रंग या पर से हमारा हाइट क्या होगी, ठीक है, अगर ये हमारी जनरेशन में ट्रैवल करता है तो साइंटिफिकली इट हैज़ बिन प्रूवन दैट हमारे सेल्स जो हैं, हमारा जो डीएनए कैसे एक्सप्रेस करता है वो हमारा दिखाता है कि ट्रॉमा अगर आपके एंसेस्टर्स ने फेस करा है, अगर उन्होंने किसी ट्रॉमेटिक इवेंट में पार्टिसिपेट करा है या जो भी है, ठीक है, उसमें आपके जीन्स भी उसके हिसाब से डिफरेंटली एक्सप्रेस कर रहे हैं. द स्टडी हैज़ बिन डन ऑन सेलुलर लेवल, मतलब आपके डीएनए पहले कैसे एक्सप्रेस कर रहा था और अब कैसे एक्सप्रेस कर रहा है. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म सहा है, उन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन, रेसिज्म बहुत ज़्यादा सहा है. तो यू हैव सीन देम कि उनका ना बॉडी वेट इज देयर ओबीस, उनका बॉडी वेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है. क्यों? बिकॉज उन्होंने इतना हंगर देखा है कि उनके जीन्स जो हैं, वॉट एवर हैपन्स, वो जो भी खाते हैं उसको वो फैट में कन्वर्ट पहले कर देता है. बिकॉज द जीन हैज़ अंडरस्टूड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जनरेशनली इट हैज़ अंडरस्टूड कि शायद खाना नहीं मिलता है. ओके, तो जो भी खाना आ रहा है पहले मैं उसको रिजर्व कर लूँ बॉडी में. दिस इज हाउ द जीन हैज़ चेंज्ड इटसेल्फ. सो टुडे द फैमिलीज, आगे जो जनरेशन्स हैं, दे आर मोर प्रोन टुवर्ड्स ओबेसिटी, दे आर मोर प्रोन टुवर्ड्स दीज काइंड ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स. ठीक है, दिस इज कमिंग फ्रॉम वेयर? दिस इज कमिंग फ्रॉम जनरेशन. आज की जनरेशन डजंट हैव दैट प्रॉब्लम. दे हैव plenty of food, they are equally treated, everything is fine. But still, why they put on so much of weight is because this is the gene which has learned. The genes has learned that I have to store food as fats first. Okay, so this is one of the example of generational trauma, which is, you know, it's very important for everybody to understand कि भाई मेरे ancestors में या मेरी generation में क्या traumas move कर. For example, my mother. Okay, so my mother wasn't allowed per se to wear short clothes, so she was not allowed to talk to boys. ये छोटी छोटी चीज़ें जो societal हैं, I'm discussing that. इसमें क्या है, तो she has grown in an environment where she was taught by her mother that you're not supposed to talk to men, you're not supposed to, you know, dress like this, you're not supposed to talk like this, you have to sit in a particular way. This is what she has been taught. Irrespective of she did not like it when her mother was telling. मतलब जब मम्मी रोक रही थी तो उनको चाहे पसंद नहीं आया, बट इवेंचुअली जब वो अपनी बेटी, जब मैं पैदा हुई फॉर एग्जाम्पल, तो क्योंकि वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में बड़ी हुई थी जहाँ पर ये सब रिस्ट्रिक्शंस थी, सो सेम शी इज लर्नड, सो सेम शी विल अप्लाई ऑन मी. नए लड़कों से बात नहीं करो, या ये कपड़े नहीं पहनो, या ऐसे बैठो, ऐसे बोलो, ऐसे हंसो. इतनी छोटी छोटी चीज़ें भी जनरेशन्स में ट्रैवल करती हैं. ओके, सो आगे मैंने भी वही चीज़ देखी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने भी वही एनवायरनमेंट देखा तो आगे अब जनरेशन, चाहे सोसाइटी बदल गई है, सब कुछ बदल गया है, लेकिन आई विल अगेन पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन माई डॉटर बिकॉज दिस इज वॉट आई हैव लर्नड फ्रॉम माई मदर एंड दिस इज वॉट शी हैज़ लर्नड फ्रॉम हर मदर. ओके, सो दीज आर स्मॉल. ये तो बहुत सोसाइटल एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है. दिस इज हाउ जनरेशनल ट्रॉमा रन्स इन जनरेशन.
और मेरी मॉम को कितना भी बुरा लगा होगा उस वक्त, बट शी इम्प्लीमेंटेड द सेम थिंग ऑन मी. मुझे चाहे कितना भी बुरा लगा व्हेन माई मॉम वॉज डूइंग दिस टू मी, बट स्टिल आई विल डू दिस टू माई डॉटर. अगर मुझे नहीं पता कि वॉट इज जनरेशनल ट्रॉमा एंड हाउ कैन वी स्टॉप इट टू पुट इन अनदर जनरेशन, इफ आई एम अवेयर आई विल ट्राई टू चेंज माई सेल्फ, आई विल ट्राई टू चेंज माई बिलीव्स, आई विल ट्राई टू चेंज माई वैल्यूज, एंड आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अब सोसाइटी कैसी है, क्या अब ये चीज़ें ज़रूरी है कि नहीं है. देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स इन इट. So basically what we are understanding is ki what is generation and what is trauma and how these things travel in our genes. So now let's understand how generational trauma happens. There are certain ways in which generational trauma can happen. First is biological, second is psychological, third is environmental, and fourth is social means, basically society. So now let me explain you one by one. Okay, so biological means what? Biological means ki for example a mother when she is pregnant, शी स्मोक्स और पर से शी ड्रिंक्स, तो होता क्या है कि जो बच्चा आगे पैदा होता है वो द चाइल्ड विल बॉर्न विद वेट कम होगा, ठीक है, या फिर कोई ना कोई फिजिकल डिस्फॉर्मिटी होगी. ये क्या है? दिस इज वन ऑफ द अब्यूज, दिस इज अ ट्रॉमा विच द चाइल्ड सफर बिकॉज ऑफ अ मदर्स एक्शन. जनरेशनल, करेक्ट. सो दिस इज हाउ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल. सेकेंड इज इन्वायरमेंटल. इन्वायरमेंटल एज इन कि सपोज कीजिए जैसे होलोकास्ट था, ठीक है, इट वॉज अ बिग इवेंट इन विच लॉट ऑफ जूइश पीपल सफर्ड. तो उन्होंने, उनके एंसेस्टर्स ने जो बर्दाश्त करा उस वक्त, वो आगे उनके बच्चों में, जनरेशन्स में भी नजर आया. देन इज साइकोलॉजिकल. साइकोलॉजिकल मतलब कि सपोज को जैसे मैंने आपको मदर का एग्जाम्पल दिया, एक सोसाइटी का एग्जाम्पल दिया, ठीक है, वैसे ही अगर फॉर साइकोलॉजिकली अगर बात की जाए, फॉर एग्जाम्पल अ मदर वॉज गोइंग थ्रू डिप्रेशन, ओके, और मदर हैज फेस्ड लॉट ऑफ रेसिज्म और मदर हैज फेस्ड लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. मदर के थ्रू वो बच्चे में भी आएगा ही आएगा. ओके, अभी क्योंकि अगर मदर इज गोइंग थ्रू सम ट्रॉमा, अभी मदर है वो अपने ससुराल में है फॉर एग्जाम्पल, एंड शी इज बीइंग ट्रीटेड बैडली, ओके, तो वो फ्रस्ट्रेटेड है, शी इज इन टू एंगर ऑल द टाइम, शी फील्स कि कोई नहीं है मेरी सुनने वाला कोई नहीं है, माई हस्बैंड डजंट टेक केयर ऑफ मी. सो होगा क्या? शी विल ट्रांसमिट द ट्रॉमा टू द चाइल्ड. in what way? I'll tell you. What happens is, if she is frustrated, if mother is frustrated because of the environment in the house, she will shout on the child more, ठीक है, she will restrict the child, she will keep the child more close to her, डर के कि मेरा बच्चे को ये सब चीज़ें इफेक्ट नहीं करनी चाहिए, मतलब माई इन लॉज और पर से माई सोसाइटी शुड नॉट अफेक्ट माई चाइल्ड. तो शी विल कीप द बच्चा बहुत पास में, वेरी प्रोटेक्टिव, शी विल बी वेरी प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स द चाइल्ड. प्रोटेक्टिव होने की वजह से ना बच्चा विल नॉट बी एबल टू एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ लाइफ, करेक्ट. वो उसको हर वक्त ही बचा के रखेगी, उसको हर वक्त ही सिक्योर करके रखेगी, बिकॉज शी वॉजंट सिक्योर्ड, शी वॉजंट गिवन द easy platform basically. Okay, so this is how it is transferring into the child. So this is your psychological. Now social means मतलब कि you come from a society where say women are suppressed. ओके, सो दिस इज वॉट दे हैव लर्न फ्रॉम देयर मदर कि नहीं हमें ऐसे नहीं करना है, या हमें ऐसे इसी पर्टिकुलर वे में रहना है, या बात करनी है, या पहनना है, कपड़े पहनने. दिस इज वॉट शी विल टीच हर डॉटर, irrespective of how hurt she was when the things were happening with her. But then she is seasoned in a way कि this is what is true, is correct, and my daughter will also follow this. So this is also transferring generational trauma. Okay, so this is all about generational trauma. I hope you like the video. Do share it, like it, and comment on it. How did you like it? And thank you so much. See you next reel. Bye-bye.